Hello guys, hello, how are you all of you? So today your last illustration number 10 of your chapter partnership account, last illustration 10th. Afterwards you do practice to your own. Any doubt in any problem you can ask me. I will tell your solution and solve your queries. Okay guys, so let's start our problem from the okay. So what is the problem? See here, one by one we can read it. Okay, from the following trial balance of from the following trial balance of Riddhi and Siddhi, you are Riddhi and Siddhi, you are required to prepare trading. You are required, yes, you are required to prepare trading and P&L for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date after considering the additional information given. So trial balance 31st March 2019, stock 1/4/2018 was 48,000. Okay, stock 1/4/2018 is 48,000. Debit balance, this is debit and this side is credit. Okay, and afterwards capital of Riddhi 50,000, Siddhi 30,000, purchases 22,500, wages 800, carriage inward 1,000, sundry creditors 27,600. Okay, carriage inward 27,600. Carriage inward, where comes it? Carriage inward, okay, then after carriage inward, 1 minute, carriage inward 1,000 and bills payable 27,600. Carriage inward come in trading account, sundry creditors 27,600. Okay, 27,600 and bills payable 20,000. Cash in hand 2,850. Insurance 1,200. Sundry debtors 32,000. Bank overdraft 18,000. Carriage outward 900. Land and building 42,500. Furniture 38,700. Sales 47,000. Purchase returns 500. Sales return 400. Rent 1,800. Okay, and bad debts 3,000. Reserve for doubtful debts, yes, reserve for doubtful debts. Okay, yes, reserve for doubtful debts 3,050. Yes, reserve for doubtful debt 3,050 and discount 700 and 1,000. Debit and credit both are given. Debit is given, discount, that means you have expensed, this is loss. So this is P&L account debit side, that means you have बियर लॉस, मतलब आपने 700 रुपये डिस्काउंट दिया है जो आपके लिए लॉस है, और 1,000 यू हैव रिसीव्ड डिस्काउंट, आपने आपके कस्टमर मतलब आप जहाँ से ख़रीदे हैं मटेरियल वहाँ से आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट मिला है, दैट मीन्स दिस इज़ अ प्रॉफिट और ये P&L क्रेडिट साइड जाएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250, एडवर्टाइजमेंट 4,150. ओके, here is no doubt. Okay, this is all trial balance and total 1,96,250, total 1,96,250. Okay, now adjustment, closing stock 48,700. That means this is which stock? This is here, closing stock. This is opening stock and this is a closing stock. Outstanding expenses, some outstanding expenses is there. Outstanding expenses means which are incurred in this year, we have to bear it. मतलब इस साल के expenses अभी हमने दिया नहीं है. Okay, so outstanding expenses, wages 700, traveling expenses 200.
Okay, now depreciation, land and building by 10% and furniture by 5%. Insurance paid in advance 3000. इंश्योरेंस पे किया है जो 3000 एडवांस है दैट मीन्स दिस 300 इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, दिस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर. Goods of 3000 destroyed by fire and insurance company rejected the claim fully. That means आपके 3000 के goods जो थे, जो आपके goods 3000 के थे वो goods डिस्ट्रॉयड मीन्स ख़राब हुए हैं और वो क्लाइम इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लाइम मतलब उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने 1 रुपये भी आपको दिया नहीं है. ओके, दैट मीन्स टोटली आपको लास्ट टाइम आपका 5000 का इंश्योरेंस था, आपको 3000 दिया था, 2000 मिला था और 3000 आपका लॉस कुछ तो था लास्ट प्रॉब्लम में. बट दिस प्रॉब्लम टोटली इंश्योरेंस क्लेम यू हैव नॉट रिसीव्ड. सो हियर व्हाट सेड कंपनी रिजेक्टेड मीन्स दिया नहीं है या देगा नहीं देगा. द क्लाइम मीन्स आपने जो क्लाइम किया है, आपने जो देखो जब हम डिमांड करते हैं ना किसी चीज़ की उसे क्लाइम बोलते हैं. किसी इसके पर केस करते हैं या कि कुछ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइम इन लैंग्वेज ऑफ लॉ. फुल्ली मतलब फुल्ली वो चीज़ वो नहीं देंगे, मतलब कि ये जो टोटली 3000 है ये पूरा टोटल लॉस है, 1 रुपये भी आपको नहीं मिलने वाला है इसके बारे में, तो ये टोटली P&L अकाउंट को जाएगा. यस, सो दिस इज़. इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की है या नहीं है, यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 350 क्रेडिट बैलेंस है. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये प्रॉब्लम मैं खुद करूँगी, ये आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है. इससे पहले कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स होंगे वो आप डेबिट बैलेंस होंगे शायद से, मैं देखती हूँ. यस, सो RDD कहाँ पर है इसमें? ओके, यहाँ पर नहीं है RDD. ओके, सो चलो हम लोग करते हैं अभी. यहाँ पर रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेट्स 350 प्रॉफिट साइड है, तो ये प्रॉफिट हुआ है. देखेंगे किस तरह प्रॉफिट हुआ है और न्यू कुछ RDD है क्या, दिया तो नहीं है. चलो देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कैसा आता है. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो पहले आप लोग क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे कौन सी कंपनी में हम लोग क्या कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट. मैं थोड़ी देर लिखूँगी. सो व्हेनेवर जब भी आप लोग अकाउंट्स करेंगे अच्छी तरह हेडिंग मेंशन करके, डेबिट क्रेडिट मेंशन करके आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं गाइस. जब भी आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019,
इस चीज़ के लिए आपको 1 और 1.5 मार्क होते हैं। अगर आपने ये अच्छी तरह नहीं लिखा, ये मेंशन नहीं किया, डेबिट क्रेडिट अच्छी तरह मेंशन किया, पर्टिकुलर अमाउंट आपने डायरेक्टली कैसे भी करके लिख दिया है, आपका सोल्यूशन अच्छे रहने पर भी आपके मार्क्स कट होते हैं। नीट एंड क्लीन विथ वर्किंग नोट्स, एडजस्टमेंट के वर्किंग नोट्स। ओके, यस। यस, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्यूशन किस तरह करते हैं हम लोग। जे पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नीट और क्लीन। कभी जब भी आप अकाउंटिंग करते हो ना, आपके अकाउंट को देख के बोलना चाहिए कि कितनी अच्छी तरह अकाउंटिंग की है, कितनी अच्छी तरह परफॉर्मा बनाया है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में पहला क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर है हमारा? दिस इज़ ओपनिंग स्टॉक 48,000 टू यहाँ पर है हमारा ओपनिंग स्टॉक। यस, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 48,000 टू ओपनिंग स्टॉक। सो कितना है ओपनिंग स्टॉक? 48,000। ओके, 48,000 इज़ आवर ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेस, अनसोल्ड गुड्स कुछ है क्या देख लेने का पहले। जब भी आप कुछ करते हो तो एक बार ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ है क्या, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है क्या, हर चीज़ एक दो बार तो पढ़ना ही है। कभी कभी भूल जाता है तो पूरा आंसर रॉन्ग होता है, इसलिए एडजस्टमेंट अच्छी तरह फिर से देख लेना चाहिए। सो यहाँ पर परचेस के बारे में कुछ रिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या, एक बार देख लो। नहीं है। ओके, हियर नथिंग इज अबाउट स्टॉक। सो डायरेक्टली परचेस और सेल्स। सो डायरेक्टली परचेस टू परचेस, हाउ मच कॉस्ट गाइज? परचेसेस 22,500 इट परचेस। रिटर्न्स है क्या? परचेस है, रिटर्न्स कुछ है, सेल्स रिटर्न्स यहाँ पर तो कुछ परचेस रिटर्न है। यहाँ पर सेल्स के नीचे परचेस रिटर्न्स है। कितना है परचेस रिटर्न्स? 500। सो परचेस लेस रिटर्न 500, तो कितना आया? परचेस रिटर्न 500, सो 22,000। ओके, उसके बाद और क्या आएगा यहाँ पर? वेजेस आएगा। पर यहाँ पर देखिए कैपिटल हो गया, परचेस हो गया, वेजेस आता है ना 800। ओके, तो कुछ एडजस्टमेंट है क्या पर वेजेस के बारे में देख लो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है और ट्रॉलिंग एक्सपेंसेस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जो P&L अकाउंट में आएगा, और वेजेस है तो ट्रेडिंग में आएगा। सो वेजेस कितना है? वेजेस 800 और ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 1500। ओके, यस। उसके बाद वेजेस हो गया। कैरेज इनवर्ड
ट्रेडिंग में आएगा या पिंडल में आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। सो कितना है? 1000 कैरेज इनवर्ड, 2 कैरेज इनवर्ड 1000। ओके, यस। और कुछ है क्या जो ट्रेडिंग में आएगा? एक बार देख लीजिए। सैलरी रिटायर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, सेल्स, परचेस रिटर्न, रेंट, बैड डेट, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट। सो नहीं है, और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, और अभी यहाँ पर बाय सेल्स कितना है? बाय सेल्स 47,000, बाय सेल्स 47,000। ओके, सॉरी इनर कॉलम में, क्योंकि रिटर्न्स हो सकते हैं ना, एक बार देख लेना। सेल्स रिटर्न है, सो सॉरी गाइस, इनर कॉलम 47,000 लेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न्स लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्स रिटर्न्स 500। ओके, सॉरी परचेस रिटर्न्स है। सेल्स रिटर्न कितना है? 400 है। यस, सेल्स परचेस रिटर्न 500, फॉर सेल्स रिटर्न्स 400 है। सो 400 इज़ सेल्स रिटर्न्स। सो कितना आया? 46,600। ओके, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है अबाउट गुड्स डिस्ट्रॉयड। यस, यहाँ पर है गुड ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लाइम फुल्ली। तो 3000 के हमारे गुड्स गए हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स है, इसीलिए ये यहाँ पर आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, 3000। ओके गाइस, 3000 का डिस्ट्रॉयड हो गया। अभी लास्ट क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है डायरेक्टली, सिर्फ अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखो कहाँ पर होगा? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में ही होगा। क्लोजिंग स्टॉक 48,700 इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नाउ सो अभी कैलकुलेट करेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है। अभी मैं आपके लिए एक तो कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं कैलकुलेटर लेती हूँ, पर आप ओन कीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर मैं ये साइड देखती हूँ तो 46,600, 3000 एंड 48,700, तो कितना है? 98,300 है। तो ये 98,300 है। हर बार याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यही साइड क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा। आप दोनों कैलकुलेट कीजिए, जो साइड ज़्यादा हो वो यहाँ पर डालने का। अभी ये 98,000 कहीं पर तो लिख लेने का। आपके जो रफ़ वर्क होता है 98,300 कभी कभी याद नहीं होता, वैसे तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इनिशियल आप शुरुआती दौर में, इसीलिए आपको लिखने लिया 98,300 यहाँ का टोटल है। और यहाँ का कितना एक बार देख लो। कभी कभी लॉस भी हो सकता है, हर बार प्रॉफिट हो कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है। सो ये टोटल करने पर कितना आया? 72,500, दैट मीन्स। और ये कितना था? 98,300, दैट मीन्स यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्रेडिट साइड एक्सेस है, रिसीप्ट साइड ज़्यादा है, सेल्स साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट है। सो 98,300, और इसमें से हमने 98,300 निकाले तो कितना बचा? 25,800। तो ये है हम यहाँ का प्रॉफिट। 28,800 एक प्रॉफिट है और 98,300 टोटल है यहाँ का। ओके, ये याद रखना, हर बार क्रेडिट साइड करना, लेकिन लिख लेना, मतलब याद रखना कि कौन सी साइड ज़्यादा है। एक बार क्रॉस चेक करके ही प्रॉफिट निकालो, कभी लॉस भी हो सकता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, अच्छी तरह देख लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं रुकती हूँ। अगर आपको कुछ
यस नेक्स्ट बाय बाय अभी यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट अभी यहाँ पर का ग्रॉस प्रॉफिट लेना है हमें, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है। अभी P&L अकाउंट स्टार्ट करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,800, ओके 25,800 यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिया है। यस अभी नेक्स्ट जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग इस साइड लेंगे। यस गाइस, सो वन बाय वन। सो परचेसेस हो चुका है हमारा, वेजेस हो चुका है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में गया है, सेंड्री क्रेडिटर्स ये तो लाइबिलिटी साइड आएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड आएगा, कैश इन हैंड ये सारे एसेट मतलब बैलेंस शीट के आइटम है, कैश इन हैंड। इंश्योरेंस है 1200 है, डेबिट में दिया है, दैट मीन्स ये एक्सपेंस है, इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंस आएगा। यस सो लेकिन इंश्योरेंस के बारे में कुछ है क्या, देख लीजिए एक बार। एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है, कुछ तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एक बार क्रॉस चेक। सो इंश्योरेंस यस, सो हियर इंश्योरेंस के बारे में आपको क्या दिया, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस हाउ मच कॉस्ट 300 का इंश्योरेंस एडवांस में दिया है। सो एडवांस में अगर 300 का इंश्योरेंस एडवांस है, दैट मीन्स वो दिस ईयर इस साल का एक्सपेंस नहीं है। सो आप जब करेंगे तो क्या करेंगे, टू इंश्योरेंस यस टू इंश्योरेंस 1200, उसमें से इसमें से 300 इस साल का नहीं है। सो लेस प्रीपेड कितना है 300, तो इस साल का कितना हुआ 900, ओके 900 ही इस साल का इंश्योरेंस है। ओके गाइस, यस उसके बाद टू डिप्रिसिएशन, यस टू डिप्रिसिएशन, ओके डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, ओके लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन है। और किस पर है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना है 10% है, और फर्नीचर के ऊपर कितना है 5% है। लैंड और बिल्डिंग के ऊपर 10% है और फर्नीचर के ऊपर 5% है। ओके यस, एक मिनट। Yes guys, sorry for inconvenience, I apologize. Yes, land and building, yes. So working notes, so here working notes, we should do working notes guys, working notes, or you have to rough work, but whenever you doing working notes is neat and clean. Many of you do working note as a rough calculation, that is not a good sign. When our working notes do, so symbolically which type of working note, in which area is this working note. Now I am taking depreciation, depreciation, so depreciation,
Okay, so depreciation calculation, depreciation calculation. So now first and land and building. So land and building, how much cost land and building? Yes, so here land and building cost is 42,500. So 42,500 land and building, 42,500. Now depreciation for 10% and furniture 5%. So land and building 10%. So how much will it come? It's come equal for 4,250. This is land and building. Yes, yes, land and building 42,000, 4,250 land and building. And furniture is equal to how much cost? Furniture 38,700. 38,000 furniture is equal to 38,700 into 5%. So how much it's come? 385 into 5. So 119. Yes, 1935. That is a figure 1,925. One minute. Furniture cost is yes 1935. Sorry guys, 1935. Okay, 1035 is furniture depreciation and land and building 4,250 is yes, land and building depreciation. So here depreciation for land and building, how much? 4,250. And furniture how much? 1935. So 2 include कितना हुआ? 4,050 is equal to 6,185. 6,185 is your depreciation, total depreciation. Now this is a depreciation हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया और क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए. बिल्स पेबल्स, इंश्योरेंस का हो गया, सैनिटरी डेटार्स, बैंक ऑर्डर, कैरेज इनवर्ट, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न्स, रेंट है. रेंट 1800. एक याद रखिए, आपको रेंट दिया है और 1800 दिया है, क्रेडिट में दिया है. ओके, जब भी आपको कोई ऐसे डिस्काउंट, रेंट ऐसे कुछ भी देता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए लॉस हो, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है. आपको क्या लगता है रेंट सिर्फ हम ही लोग पे करते हैं? हमें भी तो आ सकता है ना बिजनेस को. सो यहाँ पर सेम वे रेंट है 1800 है जो क्रेडिट में है. दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉट अ लॉस, दिस इज़ अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस. ये इनकम है जो रिसीव्ड हुआ है, इसीलिए क्रेडिट साइड है. ध्यान से जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में अच्छी तरह देखना. डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है सो लॉस है, P&L के क्रेडिट डेबिट साइड जाएगा. लेकिन क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, दैट मीन्स ये इनकम है और क्रेडिट साइड जाएगा. ये इनकम है या एक्सपेंस है, अच्छी तरह देखने का. रेंट है, चलो P&L के डेबिट साइड डाल दिया, ऐसे नहीं है. रेंट है पर बैलेंस कहाँ पर है? क्रेडिट में है, क्रेडिट बैलेंस में. दैट मीन्स आपने रेंट दिया नहीं है, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है. सो इसीलिए ये क्रेडिट साइड में आएगा. यस गाइस, यस. बाय रेंट हाउ मच कॉस्ट? कितना है? 1800. यस. उसके बाद
बैड डेट्स, यस यहाँ पर है बैड डेट्स। कितना है बैड डेट्स? 300 है। दैट मीन्स ये लॉस है, डेबिट साइड है। सो डायरेक्टली आप डेबिट में लिखेंगे। देखिए गैस, एक याद रखिए, 1 मिनट, हाँ आपको यही बताना था मुझे, पर उससे पहले, ये बताने से पहले मैं ये पूरे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मैं लास्ट में बताना चाहूँगी। तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट एक 750 है, 1000 है, यस नहीं सॉरी 700 है और 1000 है। एक डिस्काउंट आपने रिसीव्ड किया है और एक डिस्काउंट आपने पे किया है। सो टू डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड है, जो लॉस है आपको, ओके डिस्काउंट अलाउड है 700 है जो लॉस है। और एक डिस्काउंट है क्योंकि डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है जो आपके लिए प्रॉफिट है। सो ये क्रेडिट में, ओके ये डिस्काउंट हो गया। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ एडजस्टमेंट है, देख लीजिए अच्छी तरह। आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर एडजस्टमेंट में कहाँ पर है, देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 200, तो 200 का एडजस्टमेंट है। इसीलिए मैंने बोला था हर चीज़ के बारे में एक बार एडजस्टमेंट में देख लेने हैं, क्योंकि हर चीज़ याद रहती ऐसे नहीं है, कुछ चीज़ें भूल सकते हैं आप लोग। तो अच्छी तरह हर चीज़ जब भी आप ट्रेडिंग में P&L में करते हो, बैलेंस शीट में सब कुछ सॉल्व होने के बाद फिगर आता है, इसलिए उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में जब भी आप एंट्री मारते हो, चाहे वो डेबिट हो और क्रेडिट हो, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया है या नहीं है, ये पहले कंफर्म करके ही आप एंट्री मारेंगे। और उसके बारे में अगर नेसेसिटी हो तो आप वर्किंग नोट्स में मेंशन करेंगे कि आपने ये किस तरह कैलकुलेट किया है और ये फिगर आपने कैसे निकाला है। इसके मार्क्स होते हैं। और अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, फिगर तो कोई भी आ सकता है। आपको ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट आता है या नहीं, आपने अच्छी तरह डेबिट और अच्छी तरह क्रेडिट किया है या नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ दिमाग में रख के आपको अकाउंट्स करना है विदाउट वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट भी एक सीक्वेंस में, अभी देखो मैं भी वर्किंग नोट करती हूँ।